चलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास वैलिडेशन की। तो देयर इज अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज अ पजल टाइप क्वेश्चन। The question is says a family consists of six members. Okay, A, C, B, S, M, T. Okay, there are six members. Next thing is there are two married couple and three children. Okay, it means there are four members which are married to each other and the two are unmarried. Okay. Next is she is the mother of each spouse. Each spouse it means he is married to someone's, okay, and someone's mother is any female. A symbol is. Next is M is the only daughter of A who is the grandparent of T. Okay, listen. M is the only daughter of A who is the grandparent of T. So listen. Uh, M is the daughter of A, daughter of A. Who is the grandparent of T? So T is third generation. Okay, because this is the grandparent of the grandparent है तो neither I say this is male or female. Okay, this is grandparent. Next line is T. Who is not a female member. If it is not a female, so then is a female. S is the parent of T. So S is the parent of T. Who is not a child of M. ठीक है. So S is not a child of M. S is the parent of T. Who is the yes. So the question is there are six member two married couple. Okay. Say that now we know that there are three married generations. Okay. So T is the third generation. We put here. Okay. S is also the कौन है parent है तो you married to S here. Okay. S here and again A comes here. A is a male member. Okay. And here is M. M is a female. If M is a female, that I can say S and M. S and M are siblings. S and M are siblings. T is also plus member. Okay. There are there are two married couples. So one is CA, second is PS. Okay. Next is M. There are six members. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. This is a simple, very simple question. But now where I can say P and S. M is the only daughter. Listen, M is the only daughter. Okay. If only daughter is M, so then definitely this is a male and this is a female. Where I can prove who is male and who is female. Okay. I hope do you understand this question? And it is a very simple. Can you please do it first? जल्दी से करिए क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन।
करो भी करो जल्दी। करेक्ट। क्या लिखा है? A family of three generations consists of seven members and two married couples. Seven member हैं। M is the only daughter of five। M only daughter है किसकी? Y की। B the only son of L। B only son है किसका? L का। Is the daughter in law of X। L जो है वो क्या है? daughter in law है X। It means X is here। X has a son who is married to। okay। O is a child of Z। okay। O is a child of Z। M is unmarried, so M is not married। okay। married है ये। X and Y are married couple। X and Y क्या है? married couple हैं। okay। X and O are opposite gender, so X and O are opposite gender if first condition is if your here is X, okay, X and Y are married couple, so X has a M is unmarried, okay, and stage is M is the only daughter, okay, so M is the only daughter, so definitely there is a son, okay, who is related to L, okay, आगे क्या लिखा है? B only son, only son, क्लियर? क्या बोला था उसने? केवल दो मिनट का पहले सात नंबर, एक दो तीन चार, दो दो चार, दो छः, एक और रह गया। डेफिनेटली आप जेड को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और वो क्या आ गया यहाँ पे? फीमेल, तो एक्स मेल, ये मेल तो ये फीमेल, ये बन जाएगा। ठीक है, हम तो अनमैरिड था, समझ लो, हम अनमैरिड था। उसने क्या बोला है? वी जो था ओनली सन था, तो ओनली सन था बेटा, ओनली डॉटर तो हो सकती है, इसकी बहन बन जाएगी। ठीक है। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, जल्दी से करिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा।
टाइम लीजिए और बताइए जल्दी से आंसर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, आंसर पढ़ना फिर दोबारा से। क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 8 मेंबर्स डी ई एच आई जे के इन फैमिली विच कंसिस्ट ओनली टू मैरिड कपल्स। ये दो मैरिड कपल हैं केवल। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। नेक्स्ट लाइन में लिखा था आई इज द मैरिड डॉटर ऑफ जे। ठीक है, तो आई जो है वो मैरिड है किससे? डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ जे से है तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, मेल बनेगा आई। हु जे हैज टू चिल्ड्रन, तो जे है, इसका कोई दूसरा बच्चा भी है जो कि इस फीमेल का क्या होगा, भाई होगा या बहन होगा। हमारा कोई भाई या बहन। जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। जे जो है किसकी, एच की सिस्टर इन लॉ है। तो एच मतलब भाभी बनाते हैं, पहले भाभी की तरफ चलते हैं। आगे क्या लिखा है, ई इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ। ई इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ इज द ओनली चाइल्ड, ना मेल का पता ना फीमेल का, लेकिन ई से अब अलग कोई पर्सन नहीं है। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ। ठीक है, देखो ई का कोई ग्रैंड फादर है, और क्या लिखा था, डी इज द सिस्टर इन लॉ, ये इसकी ठीक है, इसकी सिस्टर इन लॉ होने का मतलब है इसका कोई भाई। ठीक है, कौन आएगा, यहाँ आएगा जी, सिस्टर इन लॉ।
नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा था? डी इज यंगर देन के। डी जो है क्या है, के से छोटा है। हु डजेंट हैव अ सिस्टर। तो के जो है इसकी कोई भी बहन नहीं है। जब बहन नहीं है, भाई तो हो सकता है, ये भी पॉसिबल। तो इसको बनाते हैं। 8 मेंबर हैं, दो मैरिड कपल हैं, देयर इज नो सिंगल पेरेंट। ठीक है, दो मैरिड कपल हैं तो भाई हमें यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है कि एक तो जी वाली कंडीशन बन रही है, पूरी की बन रही है। तो ऐसा करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जी फीमेल है, और जी को जे से तो मैरिड नहीं कर सकते, जी को जे से तो मैरिड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जी फीमेल है तो मे बी पॉसिबल, एक बार हम इसको, ये तो बताया नहीं है ना भाई कितने कितनी जनरेशन। तो बोला है जो एक का जो जी सिस्टर इन लॉ का ब्रदर ऑफ सिस्टर इन भाभी भी हो सकती है। ये वो चिल्ड्रन। भाभी अगर बनाता हूँ वो ना भी बनती है, ये ऑलरेडी फीमेल है। यहाँ रखो तो मैट कपल ज़्यादा हो जाएंगे, जनरेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर नीचे रखते हैं बच्चों क्वेश्चन को तो जनरेशन ज़्यादा हो जाएगी ना क्वेश्चन में। नहीं लग रहा आपको जनरेशन में ज़्यादा हो जाएगी? तो बोला जी सिस्टर इन लॉ ग्रैंड फादर ऑफ ही, सिस्टर इन लॉ, एक तो लाइन ये है। और एक और बोला है क्या था, ये सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। ये जो है वो एच की सिस्टर इन लॉ है। यहाँ पे रखना है बेटा। अगर मैं ई को सबसे नीचे रखता हूँ तो मेरिट कपल आने दो। तो अगर जी को एस से मेरिट कपल करा तो मेरिट कपल आगे तीन। तो यहाँ पे रख सकता हूँ जी। ई के ग्रैंड फादर की कौन है?
ए का ग्रैंडफादर यहाँ पे आ जाएगा। इनमें से कोई जिसके सिस्टम लोग बंदे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला था, ई जो है वो ओनली चाइल्ड है किसका, एफ का। ई जो है वो एफ का ओनली चाइल्ड है, तो ई जो है वो एफ का ओनली चाइल्ड है, तो इसका मतलब आप आई इज द मैरिड डॉटर ऑफ जे। अब डेफिनेटली फीमेल बनेगी भाई, अब डेफिनेटली फीमेल बनेगी। क्वेश्चन की लाइन ही ये है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये का हमें पता नहीं मेल है या फीमेल है, ये यहाँ से खत्म है, ये यहाँ से खत्म है। उसने बोला था क्या, कोई बोला था के लिए क्या लाइन थी भाई, बी यंगर देन के हु डजंट हैव एनी सिस्टर। के जब तो कोई भाई बहन नहीं है, के का कोई भी ना भाई है ना बहन है। तो अगर बेटा के का कोई भी भाई बहन नहीं है, ओके, तो अगर भाई बहन नहीं है तो क्या हो सकता है, उसने क्या बोला था कि के जो है, हाँ के को यहाँ रख सकते हैं ना। चल खत्म। डी इज यंगर देन के हु डजंट हैव एनी सिस्टर। ठीक है, तो बेटा जो हु डजंट हैव एनी सिस्टर, तो के जो है उसकी कोई बहन नहीं है, तो बहन नहीं है तो भाई तो हो सकता है। एक परसेंट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8% हो गया। क्या डी नहीं आया है तो बेटा डी को, डी को यहाँ रख दो। अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। ओके, चलो अभी समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, ए बी बी सी ई एफ जी एच। देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखो। ए बी सी डी, ये 8% इन फैमिली, देर आर 3 मैरिड कपल एंड 3 जनरेशन। कितने पर्सन है, 3 मैरिड कपल है, इसका मतलब हमारे पास 6% तो ऐसे हो गए जो मैरिड होंगे, है ना। तो 3 जनरेशन में है। ए द ओनली डॉटर ऑफ डी, बेटा ए जो है वो किसकी ओनली डॉटर है, ए इज द ओनली डॉटर, डॉटर इट मीन्स फीमेल। हु इज द पैटर्नल, मैटर्नल और पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई। ठीक है, तो डी जो है तो भाई साहब ई को सबसे नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ई का मतलब ये देखो, ये डेफिनेटली इसका कोई भाई होगा। ठीक है, और इसका कौन बच्चा होगा, इसका बच्चा होगा ई। हम्म, इसका बच्चा होगा ई। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है इसके बाद,
जी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सी। जी जो है ओनली चाइल्ड है, इसका मतलब इसको कोई भाई बहन नहीं होगा। एफ इज द मदर इन लॉ बी। एफ जो है वो मदर इन लॉ है बी। एफ फीमेल। बी का इसका कोई बेटा नहीं, बेटा या बेटी कैसे कह सकता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, यहाँ कौन आएगा, बी। बी जिससे मेरिड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक अपना ये वाला टाइप। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल इज, द नंबर ऑफ मेल इज द फैमिली टू मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल, ठीक बात है। ए इज अनमेरिड, ठीक है। ए की शादी नहीं हुई। सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। सी जो है क्या है, डी का सन। डी का सन इन लॉ तब बना सकते हैं कि बेटा इस ए को मैरिड करा दो। सी का एक ही बच्चा होगा, जी होगा, ठीक है। ये अपनी लाइन यहाँ से खत्म हो गई। इसके बाद क्या बोला है उसने, एच इज नॉट मैरिड टू डी। बेटा अब एक बात देखो, अगर एच मैरिड नहीं होगा मतलब ये कन्फर्म है मैरिड होगा किसी न किसी, ठीक है। कितने क्या बोला था, तीन मैरिड कपल है। एक तो डी हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई हमारा जो एच है ना वो मैरिड कपल है। पहले यहाँ पे देखो पर्सन कौन कौन आ गया, ए आ चुका है, आ गया, डी आ गया, सी आ गया, है ना। ए डी सी आ गया, बी आ गया, तो कौन आ गया, ये आ गया। हमारे पास अभी तीन बचे हैं, बी एफ, ठीक है। क्या बच रहा है, बी एफ एच बच रहा है, बी एफ। ये 3% बचे हुए हैं मेरे पास अभी, तो क्या कहना आगे की लाइन में वो कह रहा है, आगे वो कह रहा है डी इज नॉट मैरिड, एच इज नॉट मैरिड टू। बेटा जब यहाँ पे एच नहीं आएगा, ठीक है, एच तो ला नहीं सकते। अब मेरे पास क्या बचा, एफ और बी बचा, एफ और बी बचा। तुमने बेटा अगर तुमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो एफ भी ऊपर जाएगा तो जनरेशन कितनी होगी, जनरेशन होगी तीन, जनरेशन होगी चार। तो आप एक काम कीजिए, एफ को यहाँ पे फीमेल, डी से एफ, एच तो मेरिड नहीं था, एफ तो हो सकता है, ठीक है। और क्या बोला था, जो एफ है वो बी की क्या है, मदर इन लॉ है। तो आप बी को रखिए यहाँ पे, बी को बना दीजिए फीमेल, देन एच आ जाएगा मेल। तीन मेरिड कपल, एक दो तीन, ठीक है, 8% थे, सभी आ चुके हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, इसने बोला था नंबर ऑफ मेल जो है वो 2% ज़्यादा है किससे, फीमेल थे। इसका मतलब हमारे पास चार और चार अगर रखते तो ये हो जाता, ठीक है। और दो ज़्यादा है किससे, हाँ फीमेल से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाँच और तीन का पेयर लेना पड़ेगा। तीन फीमेल होंगे, पांच मेल होंगे, तीन फीमेल हमारे आ चुके हैं तो पांच मेल हमारे पास, ये दोनों भी मेल, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। ओके, ये क्वेश्चन है, चलो जल्दी से करते हैं कि क्या लिखा है। इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर इन विच 5 फीमेल मेंबर, जी सन इन लॉ से। तो जी जो है बेटा एक का सन इन लॉ, सन इन लॉ तब बनेगा किसका, यहाँ पर कौन आएगा, इसकी बेटी, हु मतलब यही बात कर रहा है, हु इज मैरिड टू बी। तो ए जो है किससे मैरिड है, बी से मैरिड है। बी इज मदर, बी मदर है, मदर ए मेल बन गया, तो टू डॉटर, एक बहन हो रही है। एफ इज ब्रदर लॉ ऑफ एच, एफ जो है इसका ब्रदर लॉ है। डी इज मदर ऑफ एम, डी जो है मदर लॉ है। एंड एफ जो है वो क्या है, एच का ब्रदर इन लॉ है। आगे बोला है डी इज मदर ऑफ एम, डी जो है एम की मदर है। एंड एम, डी जो है मदर है किसकी, एम और एम की। एफ इज अ मैरिड मेंबर ऑफ फैमिली, एफ भी क्या है, मैरिड पर्सन है भाई। अगर ये मैरिड है तो ये क्या बना, ब्रदर इन लॉ ना, कौन, F। तो अगर ये मेल है तो यह फीमेल होगी, ठीक है। एफ जो है क्या है, एच का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर बोला है। और क्या बोला था कि जो एच है, तो एच को आप एक काम करिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसकी कोई बहन, बहन का हस्बैंड कौन बना, एफ, ठीक है। क्या बोला था, तीन बताइए कितने मेल है कितने फीमेल, ऐसा कुछ बोला, फाइव फीमेल है, बस ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। डी जो है उसके दो बेटियां हैं, कोई बात नहीं, देखो फिलहाल तो हम
भाई ऊपर तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो आएगा नहीं डी, डी को पॉसिबल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, डी की दो बेटियां हैं, एम और एन। ठीक है, डी इज द मदर ऑफ एम और एन। ठीक है, डी मदर आ गई, ये हमारा खत्म हो गया। आगे क्या बोला था, एच जो है, सॉरी एफ जो था वो ब्रोथन लो है किसका, इसका। एक बार देखो, अगर आपके पास, मुझे पता है कौन आना है, एक पर्सन आना है फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, इससे मैडम किसको करा सकते हैं, पहले यहाँ पे रखते हैं एच को, यहाँ पे रखते हैं एच को फीमेल बनाते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला था, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं था, मदर ऑफ टू डॉटर। बात है, उसने बोला था एफ जो है वो क्या है, ब्रोदन लो है। ठीक है, जो है ब्रोदन लो तब हो सकता है कि भाई, ठीक है, या उल्टा कर लो थोड़ा सा, उल्टा क्या कर लो, उल्टा एफ को रख दो इसके साथ, ये इसका ब्रोदन लो लग गया, और जो यहाँ पे था जी, जी को रख दो। ठीक है, और एफ इज अ मैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, ये अपना हो चुका है। डी द मदर ऑफ एम्बरेन, डी द मदर ऑफ, ये अपना क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला था, फाइव फीमेल है, एक दो तीन चार। ठीक है, इनमें कोई एक फीमेल है, उसका पता नहीं बेटा हमें है, ये नहीं पता। ठीक है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, ना एम का जेंडर पता है, ना एन का जेंडर, लेकिन फाइव फीमेल है, तो ये अपना क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।